Praise the Lord. Thank you for giving this opportunity. प्रभु की स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूँ ये अवसर, ये मौका जो आपने दिया उसके लिए। As Brother Abu was saying that I know him from my college days onwards. At that time, he was ahead of me, so he came to our college और and lead our prayer groups. मैं जैसे उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हैं और वो मेरे बहुत आगे थे और कॉलेज के अंदर एक प्रेयर ग्रुप रहता था, उनकी अगुवाई वे करते थे। I'm from a Catholic background, so what brother comes and encourages us was very helpful at that time. और मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति था और उस समय पर भाई आकर जो मुझे प्रोत्साहित करते थे, बहुत ही मदद मिलती थी उससे। And I am very glad that I could come here and to have some fellowship and also to be a part of one family. और मैं प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं यहाँ पर आ सका और एक परिवार का हिस्सा बनकर आपके साथ संगति कर पा रहा हूं। As brother mentioned, I don't know whether I am having zealous, but one thing I am sure that I made many mistakes like Peter. और मैं पतरस के समान उत्साही हूं या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पतरस के जैसे बहुत सारी गलतियां मैंने की है। And my life was not steady, but many up and downs. और एक स्थिर जीवन मेरा नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही चढ़ाव उतार मेरे जीवन के अंदर रहा है। I went here and there and I picked up certain food which are not good and I ate. कई बार मैं यहाँ वहाँ गया, मैंने अलग अलग प्रकार के भोजन को खाया जो अच्छा नहीं था। And it took many years to come out of that poisons in my life. और कई वर्ष लग गए कि मैं उस भोजन को लेने के बाद जो जहर बन चुका था उसको बाहर निकालने के लिए। Yes, it is out of zeal, but the zeal alone is not sufficient because we need to have discernment in our life to understand what the Spirit of the Lord want to bring our hearts. और ये जो है धुन केवल काफी नहीं है, लेकिन एक परख भी बहुत काफी हमें चाहिए रहता है, क्योंकि क्या पवित्र आत्मा चाहता है हमारे हृदय में हम प्राप्त करें। I am very glad to be here in this 11th anniversary of this church. और इस कलीसिया की 11वीं इस जो एनिवर्सरी है उसमें भी मैं आकर बहुत ही आनंद महसूस करता हूँ। One of the greatest desire in my heart is that when I came to know the Lord, that is to fulfill God's desire about me in this earth before I leave. जब मैं इस संसार के अंदर यीशु मसीह को मैंने जाना तो एक ही इच्छा थी कि इस संसार के अंदर परमेश्वर की इच्छा को मैं जानूं और उसको पूरा कर पाऊं। But just a mere desire alone is not sufficient. Just like a child wanted to go and the school and to study something, but after joining the school only they understand that there's a lot of work behind it. और केवल परमेश्वर की इच्छा जानना इतना ही काफी नहीं था, लेकिन जैसे एक बच्चा को उसको कॉलेज में स्कूल में जाना होता है और उसके बाद आगे बढ़ना होता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें करनी होती है। Just like they are having a dream in their life, just like their elder brother or elder sister maybe want to be an engineer or doctor, they have to study well and hard work. Then they have to make a decision, the choices, which either to go to this course or that course or something. और जब उनके बड़े भाई जो बहन होते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, उनके समान बनने का जब उनके अंदर इच्छा या सपना होता है तो उनको एक कॉलेज के अंदर उसके अंदर जाना होता है और उसके बाद उसके अंदर अपना पढ़ाई करना होता है। So along with the growth, we need to increase in the wisdom of God and discernment of God to understand what the Lord wanted me to do here and how. Yeah. और परमेश्वर चाहता था कि उस बुद्धि के साथ साथ उस समझ के परख के साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि मुझे किस प्रकार आगे बढ़ना है, क्या मुझको करना है। And in my life, my heart was longing after to fulfill something that is in which the Lord is cherishing in His heart. और मेरे जीवन के अंदर यही इच्छा थी वो करने की जो परमेश्वर अपने जीवन में चाहता था उस बात के लिए। It's easy to understand laws and then to obey God. और ये बहुत अच्छा होता है कि उस व्यवस्था को जानकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। But behind the laws there is a heart behind, and that we need to know in order to build a body. और यहाँ पर उस व्यवस्था के पीछे परमेश्वर के हृदय को समझना बहुत जरूरी होता है। God gave commandments 2000 years, not 2000, I think 4000, right? Through the Moses to the people whom he chose from out of the world. और इस संसार में से परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना था, इस्राएलियों को, बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था या कानून या नियम को दिया। But law could not made them perfect. लेकिन व्यवस्था जो है उनको सिद्ध नहीं बना पाया। Because behind the law there is a mind of God and heart of God which the people could not sense. और उस व्यवस्था के पीछे जो परमेश्वर का मन जो था, परमेश्वर का हृदय था, लोग वो नहीं समझ पा रहे थे। They understood, sir, right or wrong. और वे समझ पा रहे थे गलत है या सही है वही।
So we also may be able to understand certain things right and certain things are wrong, and we left the denominations or some other religions and come to a place, but still we can miss the heart of God. और हो सकता है कि हमने सही या गलत क्या है उसको हमने सीख लिया, हमने हमारे जो पुराने जो कलीसिया थी या संप्रदाय थे उनको छोड़कर सत्य को जानने के बाद यहाँ पर आ गए, उसके बाद भी हम परमेश्वर का जो हृदय है उससे चूक सकते हैं। Genesis chapter 1 verse 22 and 23, उत्पत्ति पहला अध्याय 22 और 23 वचन, one of my favorite verse. और बहुत ही मेरा पसंदीदा ये वचन है। Can you read? 22 and उत्पत्ति 23. पहला 22 और 23, परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। We know the story very well that Adam could not find out a soulmate, and he was lonely, alone, and maybe in the heart empty. और हम जानते हैं आदम अपने लिए साथी को नहीं ढूंढ पा रहा था, शायद वो बहुत ही अकेला था, वो पूरी तरह से वहां पर उस जगह पर अकेला था। This emptiness was put by God Himself. ये अकेलापन, ये खालीपन जो है वो परमेश्वर ने ही आदम के अंदर रखा था। When He created Adam, He knew that I need to make a helpmate at one day. और आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तब वो जानता था कि मुझे एक दिन उसके लिए एक सहयोगी उसके लिए सहयोगी बनाना है। But he was waiting to see how Adam will respond to that or react. लेकिन वो इंतजार कर रहा था कि आदम इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। So whether God was looking whether He will be satisfied with all other created things, the animals, so He brought everything before Him. और ये परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या वो सारे उसकी बनाई हुई सृष्टि से संतुष्ट वो होगा, और उसलिए सारे जो पशु और पक्षी जो परमेश्वर ने बनाए थे वो उसके सामने वो लेकर आया। And he was not satisfied. और And आदम उससे संतुष्ट नहीं हुआ। even he is not satisfied with something which is similar to him, a monkey or a gorilla. और यहाँ पर कोई जो गोरिल्ला है या जो बंदर है उसके समान दिखने वाला जो है उसके साथ भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, उससे भी। So then then God led him to a rest. और उसके बाद परमेश्वर आदम को एक विश्राम के अंदर लेकर जाता है, उसको सुला देता है। Then He created a woman. उसके बाद स्त्री को उत्पन्न करता है। Then He said in verse 23 that this is my flesh out of my bone. और उसके बाद वो कहता है कि ये जो मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरी मांस का मांस है। So this is a picture of how God is building His body. और ये एक चित्र है कैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाता है। Adam was not satisfied with anything which is, even though it is a living thing and it is similar in nature or maybe little bit nature, and especially the shape also same, just like in the case of monkey. और इस प्रकार से जैसे वो जो बंदर जो था या जिस प्रकार से दूसरे जो अन्य पशु पक्षी थे उसके ही आकार के अंदर He was having that discernment that that is not the one which I am longing in my heart is looking for. और उसके अंदर ये परख था कि उसके हृदय में जो वो चाहत है वो सारी चीजें वहां पर बनाई हुई सृजी हुई वस्तु में नहीं था। So when God put him to a rest and then He brought the woman, then He found that it is something which is of my spirit. और जब परमेश्वर ने उस स्त्री को बना उसके सम्मुख लेकर आया तब वो कहता है कि ये मेरे समान ही है, मेरी आत्मा के समान ही कुछ ये है। There are many churches, many meetings are there all over the world, पूरे संसार के अंदर बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारी सभाएं होती रहती है, which may have a little bit of God's expression of His will or shape or something like that. और जहां पर हो सकता है परमेश्वर की कोई योजना, परमेश्वर की इच्छा के बारे में कोई ना कुछ वहां पर बांटा जा सकता है। They may be coming together and praising God. हो सकता है वे साथ में आकर प्रभु की स्तुति करते हैं। They may be happy also when they are coming together. और जब वे साथ में आते हैं वे एक साथ आनंदित भी होते हैं। Actually, happiness is something. Happiness and joy is different. और जो खुश होना या आनंद, ये दोनों के बीच में एक अंतर है। Joy is something that is inside the heart, और आनंद जो है हमारे हृदय के भीतर रहता है, out of the work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का कार्य जब हमारे अंदर होता है उसके बाद। But happiness is related to the way which the meeting is conducted, or some type of singings, or our emotions are moved. और वो जो खुशी हमको जो मिलती है किस प्रकार से वहां पर सभा को किया जाता है, जिस प्रकार से हमारे भावनाओं को वहां पर उभारा जाता है, किस प्रकार से सारी चीजें गीत वहां पर बनते हैं, उसके प्रकार से होता है। But joy is something which the Holy Spirit is giving because it is the product of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा ही जो हमारे अंदर उस आनंद को देता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा का एक प्रोडक्ट है। So now when God is looking to many meetings and churches, and then
which is the one whom God will testify that this is a gathering which is coming out of my spirit. और Yeah. परमेश्वर ने बहुत सारी कलीसिया को, बहुत सारे ऐसे गैदरिंग को देखा और परमेश्वर ने सोचा कि कौन सी ऐसी कलीसिया है, कौन सी ऐसी जगह है जो मेरे हृदय के अनुसार की है। Again, spirit is a very complicated word, और ये confused word. और पवित्र आत्मा जो है बहुत ही गड़बड़ी कर देने वाला स्वभाव एक शब्द है। I mean, the spirit means the spirit of Christ. और यहाँ पर मैं आत्मा जो कह रहा हूँ वो है यीशु मसीह की आत्मा। Can we say, can Holy Spirit can say to us, or can Christ say to us, yes, yeah, this sister or this brother, what he shared, what she is living is, what is contributing to the body is from my spirit. It is the very essence of me is coming out of him. और यहाँ पर यदि पवित्र आत्मा यदि क्या हमारे बारे में कह सकता है कि यीशु मसीह हमारे बारे में कह सकता है कि हमारी आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति, ये भाई बहन कलीसिया के अंदर जो बांटता है, जो भी यहाँ पे योगदान देते हैं, वो मेरी आत्मा से आने वाला है। We cannot have this in one day, हमें एक दिन में नहीं प्राप्त कर सकते, but we can slowly develop by being sensitive to Holy Spirit and by allowing ourselves to come into a rest so that he can bring forth this woman from me itself. Me means, I mean, from Christ itself. और ये पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उस विश्राम के अंदर आए और हमारे अंदर से वो स्त्री, उस जो मसीह यीशु है, उसको वो हमारे लिए उत्पन्न करे। Because God brought Adam from, God brought woman from Adam, just like the bride has to, or the church has to come out of Christ. और जैसे उस स्त्री को परमेश्वर ने आदम से में होकर बनाया, वैसे ही कलीसिया को यीशु मसीह में होकर ही बाहर उत्पन्न होना है। But we are filled with a lot of other spirits, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी अन्य आत्माएं होती filled with हैं, our own will. हमारी खुद की हम इच्छा से भरे हुए होते हैं। And when we come to the church, और जब हम कलीसिया में आते हैं, we get light on that हमें उसमें प्रकाश मिलता है, and we cleanse ourselves. हम अपने आप को शुद्ध And करते हैं, as a result, our speak, our sharing, our testimony, our singing, our longing, our decisions, our making, all these things are more and more saturated by the control of the Holy Spirit और इस or the कारण Spirit of से Christ. जब हम इस कलीसिया में आते हैं, जो भी हम बांटते हैं, गाते हैं, हमारा योगदान होता है, सारी बातें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होकर होता है। Let's read Matthew chapter 13 verse 44. और मत्ती 13:44, Can you read that? मत्ती उसका 13 अध्याय वचन 44, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। Here it is written that the kingdom of God is a treasure which is hid in a field. यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। And somebody found it that the treasure is there in this field. किसी ने उसको जान लिया, उसको पता चल गया कि वो खजाना जो है इस खेत के अंदर पाया जाता है। And when the field is found by the seeker, और जो खोजने वाला है उसको जो खेत मिल जाता है, he sold all other things which are precious to him, and because he was enlightened to see that I want the treasure which is hid in this field. और उसके बाद वो जाकर अपना सब कुछ बेच देता है जो उसके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि उसकी आंखें तब खुल जाती है, क्योंकि उसने उससे बहुमूल्य छिपा हुआ धन उस खेत में पाया था। Jesus never said that he went and took the treasure, और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उसने जाकर खजाने को ले लिया, ऐसा नहीं but he कहा, bought the field. लेकिन वहां लिखा है कि वो जाकर उस खेत को खरीदता है, Because you cannot separate it because the treasure is in the field. क्योंकि उस खेत को अलग वो नहीं कर सकता है, वो खेत के अंदर वो खजाना जो है धन पाया जाता है। So the kingdom of God means the ruling of God. और ये परमेश्वर का राज्य जो परमेश्वर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। And we know that in the kingdom of any king, only the king's will and desire and decisions are prevailed. और किसी भी राज्य के अंदर हम जानते हैं कि राजा का जो इच्छा जो है, उसी का जो उसकी जो योजना है या उसके नियम है वही चलते हैं। So anybody who wants to enter into the kingdom of God and possess or to be a part of the kingdom of God, he has to buy this treasure. और किसी व्यक्ति को इस राज्य के अंदर प्रवेश करना है, इस राज्य का व्यक्ति उसको बनना है, तो इस धन को उसको खरीदना होगा। The treasure is hid in the field. और ये खजाना जो है उस खेत में छिपा हुआ है। And we know that Christ is given to us as wisdom, knowledge, redemption, and all the richness of God is
in Christ. We can find in Christ. और हम देखते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें सारे खजाने जो है बुद्धि ज्ञान समझ सारी बातें जो है उस खजाने को हमें दिया है। We were singing a song in that it is that the glory of God is in the lines. और यहाँ पर हम जैसे गीत को गा रहे थे कि उसकी महिमा वहां पर है, Is in the scripture. उस वचन के अंदर है। So from the Bible I have to take the glory, not the meaning alone. और केवल बाइबल से अर्थ को नहीं लेकिन उस महिमा को For भी that. मुझे लेना है। For that I need a spirit of Christ, a longing after knowing Christ, a thirst after him is required. और इसलिए मुझे मसीह की आत्मा चाहिए, मुझे उसके लिए भूख और प्यास मसीह की आत्मा होने के लिए चाहिए। Because it cannot be understood by intellect. और ये हमारे दिमागी ज्ञान से हम नहीं समझ सकते। So now the treasure is in the field. अब वो खजाना जो इस खेत में है, So I believe that the field is the church. और मैं विश्वास करता हूँ ये खेत जो यहाँ लिखा गया है वो है कलीसिया। So there are many fields are there बहुत सारे खेत हैं where they can play or they can have some good harvest according to the world. और संसार के अनुसार वहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं, वहां पर वो बो सकते हैं, कटनी को काट But सकते हैं। this man is not look how good the field is, but rather than he was looking whether the treasure is there or not. और ये व्यक्ति ने जाकर ये नहीं देखा कि कितना सुंदर वो खेत होना चाहिए, वो नहीं देखा, लेकिन उस खेत के अंदर वो खजाना है या नहीं वो पहले इस व्यक्ति ने देखा। Some people come to the church just want to know whether there is a good atmosphere is there. और कई लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ अच्छा वातावरण है या नहीं। Some people wanted to have an emotional elevation of their mood. और ये कई लोग ऐसे चाहते हैं कि उनका मूड जो यहाँ पर आने के बाद बहुत ही भावनात्मक होकर ऊपर बढ़ जाए। Some people wanted to get out of their condemnation just because they lived a wrong life in the last week and they just want to come out of it. और पिछले सप्ताह में क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत जीवन जिया था और इसलिए कलीसिया में आते हैं ताकि उन सारे उस दंड की भावना से वे आजाद हो सके। And some people wanted that their children should grow in a good atmosphere. कुछ लोग ऐसा चाहते कि उनके बच्चे एक अच्छे वातावरण के अंदर अच्छी कलीसिया के अंदर बढ़े, इसलिए वो आते हैं। For children's sake they are coming. और बच्चों के लिए वो यहाँ पर आते हैं। They are not found the treasure inside the church. लेकिन लोगों ने उन्होंने कलीसिया के अंदर उस खजाने को नहीं देखा है। So Paul after the conversion he said I want to gain Christ. और जब रूपांतरण के बाद पौलुस कहता है So कि what मैं does it यीशु mean? मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ। What does it mean to gain Christ? यीशु मसीह को प्राप्त करना क्या है? He is not already a born again Christian. और क्या वो एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं है? Yes, he was a born again Christian, but he want to possess the spirit of Christ ruling all of his being. नया जन्म तो उसका हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि यीशु मसीह की आत्मा पौलुस के पूरे व्यक्तित्व का पूरी तरह से उसके ऊपर राज्य कर उस पर नियंत्रण करे। Because he understood that Christ came from heaven to seek his bride which is hid in this world. और उसने ये जान लिया था कि यीशु मसीह संसार में आया ताकि उसकी जो देह है, उसकी जो दुल्हन है, उसको बना सके, और वो दुल्हन इस संसार में छिपी हुई है। Because it's one meaning of that. The other meaning is this treasure is there. Now we need to know the treasure where it is in order to become one with Christ. और यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये खजाना कहाँ पर छिपा हुआ है। So my longing, if it is for to gain Christ, यदि मेरी लालसा यीशु मसीह को और अधिक प्राप्त करने की है, then all churches, all meetings, all gatherings are not same. I could see the difference in that. तो सारी जो कलीसिया है, सारी जो मंडली, सारी सभाएं जो होती है वो सारी एक समान नहीं होती, उसके अंदर अंतर होगा। मैं इस बात को देख पाऊंगा। If I want to be a medical doctor, then I have to go to medical college. यदि मुझे मेडिकल डॉक्टर यदि बनना है तो मेडिकल कॉलेज में मुझको जाना That होगा। doesn't mean that the engineering college is bad. इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही खराब, ऐसा नहीं है। Because I was having some calling, I have some interest, I have some desire in me which is put by God and I want to be there. और मेरी एक बुलाहट है, मेरे अंदर परमेश्वर ने जो एक इच्छा को डाला है जिसको पूरा करने के लिए मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ। Once Brother Sack told an example which has really challenged me. और एक बार भाई जैक ने इस प्रकार उदाहरण दिया था जो मुझे बहुत ही चुनौती दिया, जिसने Brother said that the body of Christ, the body of Christ, the real church which God is building here now, which has the power to overcome the world and the power of the enemy. और उन्होंने कहा जो परमेश्वर जो सही वास्तविक कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में बना रहा, उसके पास वो सामर्थ्य संसार और पाप पर विजय पाने का। God wants all people to be there in that building work. और परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति, हर भाई बहन उस
निर्माण के काम के अंदर उस कलीसिया में पाए जाए। But everyone is not there, and every church has a different level of spirituality, and he explained the reason why. और हर व्यक्ति वहां पर नहीं आ पा रहा है क्योंकि हर एक कलीसिया का एक आत्मिक स्तर होता है, इस कारण से हर व्यक्ति वहां पर नहीं आ पा रहा है। He said this example: there is a big flat which is having 100 flats, 100 stores. और यहाँ पर एक उन्होंने कहा कि जैसे कि बहुत ही बड़ी ऊंची इमारत है जहाँ पे 100 उसकी जो जो इमारतें हैं, 100 घर है। So Jesus was standing in the first floor, and there are a lot of people are moving in front of the flat because there's a big highway there. और वहां पर एक हाईवे था और उस जो 100 मंजिला इमारत जो होती है, यीशु मसीह पहले मंजिल पर है, बहुत सारे लोग उसके सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं वो हाईवे से। There's a near to that there's a big market, a mall also there. और उसके पास में ही, उस इमारत के पास में, बिल्डिंग के पास में एक मॉल है, एक मार्केट है। Everybody is pursuing for their own interest in this. They want to buy something, or they want to be somebody, and like that. Everybody is interested in so many other things, and more flowing in front of this. And Jesus is inviting everyone. If there is anybody thirst, come. और हर व्यक्ति जो है अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने जो उसके इरादे थे उस प्रकार उस मार्केट से, उस मॉल से कुछ भी खरीदने के लिए वो जा रहे थे। यीशु वहां पर खड़ा होकर लोगों को बुला रहा था कि आप इसके अंदर आ सकते हो। Some people heard it. कुछ लोगों ने सुना, They entered into the building. उस बिल्डिंग के अंदर वो आ जाते हैं। They experienced the born again, or they experienced what is born again. और उन्होंने उस नए जन्म पाने का एक अनुभव उन्होंने किया। Their minds are opened. और उनके जो मन है जो वो खुल जाते हैं। They could value what Christ is telling. वे यीशु मसीह जो कहता है उसका मूल्य करने लगे। They experienced the salvation of their soul. अपनी प्राण का उद्धार का अनुभव उन्होंने किया। They tasted the Spirit of God also. परमेश्वर की आत्मा का अनुभव भी उन्होंने किया। And they were so thankful to Christ, and they said that, Lord, it's out of your mercy only we were able to come here and to recognize you and to be a child of God. Now I want to live with you. और बहुत ही धन्यवादी होते कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद तेरी दया के लिए, क्योंकि उसी के कारण हम यहाँ पर आ पाए। प्रभु हम यहीं पर बने रहकर तेरे लिए जीना चाहते हैं। So they asked where you are living. और उन्होंने पूछा कि प्रभु यीशु तू कहाँ रहता है? He said, I am in the 100th level where my father is. और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं 100 मंजिला, जो 100 नंबर का जो फ्लोर है, उस ऊंचाई पर रहता हूं जहां पर मेरा पिता भी रहता है। Then this group of people who are so committed told that we want to come with you there. और ये जो लोग जो पहले मंजिल पे थे, इतने ज्यादा समर्पित थे, वे कहते कि प्रभु हम तेरे साथ तो 100 मंजिल पर आना चाहते हैं। Then he said, then you follow the Holy Spirit. He introduced Holy Spirit to them. और वहां पर कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का अनुसरण करो, और पवित्र आत्मा का परिचय इन लोगों को देता है। Then the Holy Spirit was so joyfully because his purpose is to glorify the Son rather than giving any ministry or any gift or anything, but he wants to take something of Christ and show to the people and to challenge them continually to go to the higher level. और पवित्र आत्मा की यही सेवकाई थी कि वो उन लोगों को चुनौती दे, यीशु मसीह को महिमा दे सके और यीशु मसीह का जो कुछ है इनको याद दिलाकर और महिमावन कर और ऊपर लेकर जा सके। So they went with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ वे आगे बढ़ते हैं। Then one by one levels they are going on. और एक मंजिला, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ऐसे वे आगे बढ़ते जाते हैं। And each level when they are crossing, the Holy Spirit will tell that you need to surrender your life here. You need to acknowledge the Lordship of Christ in this area, which is not done when you converted. और यहाँ पर पवित्र आत्मा उनको हर एक मंजिल पर जैसे आगे बढ़ते जाते उनको याद दिलाते रहते हैं, अब तुम्हें यहाँ पर अपने आप को समर्पित करना है, यहाँ पर अब तुम्हें बदलने की, अपने आप को देने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, जैसे आपने पहले नहीं किया था। When they are going further, he is showing that even in certain things which they do for the Lord has an element of pleasing to themselves is hidden there. और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते पवित्र आत्मा उनको याद दिलाते जाता है कि जैसे वो परमेश्वर की सेवकाई या परमेश्वर की काम करते जाते हैं, वे उस काम को करते करते अपने लिए कुछ खोजते, अपने स्वार्थ के लिए, वो पवित्र आत्मा उनको याद दिलाता है। When they reached in some 70th floor and they said that, oh no, Holy Spirit was teaching them, see certain things you express for the Lord, but the people are appreciating you, but I cannot give you 100% mark on that. और यहाँ पर 8वें मंजिल पर आ जाते हैं लोग, यहाँ पर वो परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, वहाँ पे लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उस तारीफ के बाद वहाँ पर पवित्र आत्मा कहते हैं मैं आपको 100 अंक नहीं दे सकता। Yeah, then they were very this group of people was unhappy, so they asked them to stop the lift because it's Holy Spirit already told that whenever you feel you can stop this journey.
और यहाँ पर पवित्र आत्मा ने ये लोग जो वहां पर बहुत ही वे खुश नहीं होते क्योंकि उनको सारे अंक नहीं मिले थे और वहां पर वे बहुत ही नाखुश हो जाते। पवित्र आत्मा उनको कहते हैं कि जब भी तुमको रुकना हो मुझे बता देना, मैं उस लिफ्ट को रोक दूंगा। So some people, so then this lift was stopped, और वहां पर वो लिफ्ट रुक जाती है and Holy Spirit told that you can take your own time and take a decision. और वो पवित्र आत्मा उनको कहता है कि तुम अपना समय ले सकते हो और अपना निर्णय खुद ले सकते हो। So then this war was going on. और ये युद्ध उनके बीच में चलता है। Yeah, some of my relatives are already converted. They are having more joy than me. और कुछ लोग मेरे जो रिश्तेदार है उनका रूपांतरण, वे बदलाव, उनका नया जन्म हुआ, उनके पास मुझसे ज्यादा आनंद है। And they don't have this much of restrictions. और उनके पास इतने सारे बंधन नहीं है उनके And they are पास। also serving the Lord. वे भी प्रभु की सेवा करते हैं। Oh, why the Holy Spirit is so much hard on me? और क्यों पवित्र आत्मा मुझ पर इतना ज्यादा सख्त होता है? Why he wanted to break myself in this area, so which I also like, especially the people are appreciating my ministry. Then why should I? और खास करके इस क्षेत्र के अंदर जब लोग भी मेरी सेवकाई की इतनी तारीफ करते, इतनी सराहना करते हैं, तो क्यों मुझे इतना तोड़ता है या पीछे करता है? So during that silent time, there was some songs and praise and worships were heard from that level, because in that level also there are many rooms. और उस समय पर शांत समय था और अन्य गीत गाने का आवाज भी वहां पर आ रहा था, क्योंकि अन्य कमरे भी उस फ्लोर के ऊपर होते और वे उस आवाज को सुनते हैं। So then they asked the Holy Spirit, can I go and join with these people? They are also worshiping God. See, the songs are very good. They are praising God. See, all the lips are praising only God. और जाकर पवित्र आत्मा से पूछते कि क्या हम उस कलीसिया में जा सकते हैं, वहां पे बैठ सकते हैं, बहुत अच्छे से वो गाना गा रहे, वो भी परमेश्वर की स्तुति करे, क्या हम उस कलीसिया में जा सकते हैं? And some group of people and they also asked who are these people? और उन्होंने पूछा, कुछ लोग वहां पर जो झुंड के थे उन्होंने पूछा ये लोग कौन है? Then the Holy Spirit said that they are the people whom I took, a little bit earlier. और पवित्र आत्मा कहता है कि इन लोगों को कुछ समय पहले मैं यहाँ पर लेकर आया था। They came up to here only. और वे यहीं तक भी आए थे। So I allowed them to be there and to have their own way of pleasing and praising and worshiping God. और मैंने उनको अनुमति दी कि वे अपने तरीके से जो उनको करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, वो अपने तरीके से कर सकते हैं। So then these people said that anyway I am in this building. It is in the in the kingdom of God. और इन लोगों ने सोचा कि हाँ, मैं तो इस बिल्डिंग के अंदर ही हूँ जो परमेश्वर का राज्य है, तो अच्छी बात है। I am happy that I am born again. और मैं आनंदित हूँ, मैं नया जन्म पा चुका हूँ। Please allow me to go and join with them. और मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर इस झुंड जो उसी फ्लोर में है उसमें जाकर मैं मिल सकता हूँ। So very few people left to go further. और बहुत कम लोग अब बच चुके थे आगे ऊपर जाने के लिए। When they reached to the 90th floor, जब 90 जो मंजिल जो है उसके ऊपर जब पहुंचे, some people found it very hard to go further because the Lord is too much demanding. और बहुत लोग वहां पर जो बहुत ही सख्त पाए, उनको लग रहा था कि बहुत ही सख्त परमेश्वर है और बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। They feel that denying the self and going through this narrow gate, it is becoming more and more narrow. और अपने आप का इनकार करना, इस सकरे मार्ग से आगे बढ़ना, ये बहुत ही ज्यादा कठिन बात है हमारे लिए है। This is the only way that I can reach heaven. और क्या इसी रीति से यही मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं? Then Holy Spirit that this is not to reach heaven, but to gain the glory of Christ, or the entire part of your being is replaced, which is corrupted already because of the sin which is committed by our forefathers. और now और इसी मार्ग के द्वारा आप जो है, आपका जो बुराई से जो भरा हुआ जो शरीर है उसको बदल कर आप परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं, जो आपने अपने पुरखा, अपने बाप दादाओं से प्राप्त किया था। So those people doesn't want to have a complete transformation of their self, and so some people left earlier batch. और ये लोग जो थे अपने जीवन का संपूर्ण बदलाव रूपांतरण नहीं चाहते थे और कुछ लोग वहीं पे रुक जाते हैं। So another half of the people again left from there and joined with that. और 90 का मंजिल है, उससे भी आधे लोग रह जाते हैं और उससे वो आधे लोग आगे बढ़ जाते हैं। But some people reach the upper top level. और कुछ लोग जो आगे बढ़कर जो टॉप जो उसका लेवल जो होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। And they enjoyed the fullness of God in them. वे परमेश्वर की भरपूरी को अपने भीतर उसका आनंद उठाते हैं। So this is a work of the Lord. The redemptive work of God is going on in this group of people. और इन लोगों के अंदर जो परमेश्वर का छुटकारे का कार्य निरंतर जारी रहता है। So if our longing is really thirsting after, और यदि हमारी जो इच्छा जो है, हमारी चाहत उसके पीछे लगी रहती है,
to express God to this world in the way which God wanted us, ताकि इस संसार के अंदर उस प्रकार हम प्रतिक्रिया दे जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम then दें, He will take you through the steps which are very hard, appear to be very hard. तब ऐसे मार्गों से, ऐसे कदमों से वो लेकर जाएगा जो दिखेगा कि बहुत कठिन मार्ग है। If you are looking for only happiness, not for the joy of the Spirit, और यदि आप केवल खुशी को देख रहे हैं और पवित्र आत्मा के आनंद को नहीं खोज रहे हैं then I cannot have the fuel to go further. तो मेरे पास वो ईंधन नहीं होगा जिसके द्वारा मैं आगे बढ़ सकूं। Unknowingly, I will be settled with, or I will be drawn, attracted to certain things which my heart is longing. और अनजाने में मैं पीछे रह जाऊंगा और कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरे हृदय में जिस चीजों की लालसा है उसके अंदर मैं रह जाऊंगा। But my heart is corruptive. लेकिन मेरा जो हृदय जो है पूरी I तरह से cannot भ्रष्ट believe है, it fully. मैं उसको मानता नहीं पूरी तरह से। So I have to check my desires are the Holy Spirit desire or not. इसलिए जांचना बहुत जरूरी है कि मेरी सारी इच्छा पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार है या नहीं। If you check yourself in your heart, then you will understand what the will of God about us. और जब हम अपने आप को जांचेंगे, हम अपने आप को जांच पाएंगे कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। And if the Holy Spirit is allowing us, यदि पवित्र आत्मा हमको अनुमति देता है, we will be reaching तब हम पहुंच पाएंगे that place or the top level. वो टॉप जो 100 मंजिला जो है जहां पर हमको जाना है वहां पहुंच पाएंगे। One more small example, just a few minutes. और only. एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। So when we send a children to a school, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, why we want to learn them to write something? और हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे लिखना सीखे? Because what in their heart they need to learn to express through the letters. क्योंकि उनके हृदय में जो कुछ भी होता है, यदि उसको एक्सप्रेस करना है तो उन शब्दों के द्वारा लिखना जानना बहुत जरूरी होता है। They are taught to pick up alphabetic letters in order to express their name or something, so that what in their heart has to be expressed in letters. और इसलिए वो अल्फाबेट को, उन शब्दकोश को इसलिए सीखते हैं क्योंकि उनके हृदय में जो कुछ होता है उन शब्दों को, उस अल्फाबेट जो उन्होंने सीखे उसके द्वारा लिखकर वो अभिव्यक्त कर सके, उसको बता सके। If I pick up certain verses and write and something, if there is no meaning, then the teacher will say that what you wrote it. और यदि मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं और मैं कुछ भी ऐसे शब्दों को लिखूंगा, टीचर कहेगा तुमने क्या लिखा है। The same way God is choosing his children in order to give an expression to what heaven is. और इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को चुना है ताकि उनके द्वारा उन पर वो प्रकट कर सके कि स्वर्ग कैसा होता है। He wants people for that, just like letters is needed to express. और जैसे उन शब्दों की, उस लेटर्स की जरूरत होती है उस चीजों को अभिव्यक्त करने के लिए, वैसे लोगों की परमेश्वर को जरूरत है स्वर्ग को उनके ऊपर प्रकट करने के लिए। So if we are fully surrendering to his will and choices, यदि हम पूरी तरह से उसकी इच्छा और उसका जो चुनाव है उसके प्रति समर्पित रहेंगे, then God will use us in order to express what God desires to this generation and world. और तब परमेश्वर, यदि हम समर्पित रहेंगे तो परमेश्वर हमें इस पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल करेगा जो उसकी इच्छा में है, उसको प्रकट करने के लिए हमारे ऊपर। That's why church is called as a mystery. और इसलिए हमारे लिए वो कलीसिया जो है एक रहस्य बताया गया है। Mystery means it's a secret, cannot be understood easily. और ये एक रहस्य मतलब एक ऐसी गुप्त बात है जो आसानी से हम नहीं समझ पाएंगे, Cannot be understood by intellectual way. और ये हमारे बुद्धि और बौद्धिक ज्ञान से हम नहीं समझ Holy पाएंगे। Spirit has to reveal. पवित्र आत्मा को ये हम पर प्रकट करना होगा। Anybody who is longing to come and give fully for him to express himself through us along with other people, then he will teach us what it is and build us for और that. जब हम परमेश्वर के पास इच्छुक होकर आ जाता है, प्रभु को समर्पित करते अन्य लोगों को साथ मिलकर कि प्रभु तू अपनी इच्छा को हमारे जीवन पर, अपने कामों को प्रकट कर, तब वो इस बात को प्रकट करेगा। So may the Lord help us, this small church, प्रभु इस सहायता करे इस छोटी सी कलीसिया की in the coming years आने वाले सालों में to fulfill the entire will of God परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरा करने के लिए by increasingly yielding to him, बढ़ते कदम पर उसको अधिक और अधिक समर्पित होते हुए, discerning from what is pleasing to him and not pleasing to him, but Yes. not from evil or good. और इस बात को परखते हुए कि उसको भाने वाली, उसको प्रसन्न करने वाली क्या है या उसको अप्रसन्न करने वाली बात क्या, उसको जानते हुए। And may the Lord bless others with lot of living water flowing from here. और प्रभु अन्य लोगों को भी इस कलीसिया के द्वारा आशीष दे, ये जीवित जल के झरने इस कलीसिया के द्वारा बहने पाए। And those who are seeking, may
find, oh, this is the field I need to be so that I can have the treasure. और जो लोग खोज रहे हैं सच्चाई से, वे लोग इस खेत को इस प्रकार जाने कि यही वो खेत है जहां पर वो सच्चा धन, वो सच्चा खजाना मुझको मिला है। So please pray for us too. और हमारे लिए भी आप प्रार्थना करें। धन्यवाद।